A very great welcome to you all. So, in this video, you come to know about the part two story of the play Romeo and Juliet. It's a tragic play by William Shakespeare, you already know. And at last, in the part first, in my previous video, you come to know that Romeo and Juliet will realize that they come to know that they all belong to Montague and the Capulet family, and Romeo's father and the Juliet's father will also be called the enemy. So, they feel shocked. So here the part second. दैट सेम नाइट उसी रात की बात हो रही है रात को जिस दिन उन्हें पता चला रोमियो कम्स टू नो दैट द जूलियट बिलोंग्स टू हिज एनिमी बैकग्राउंड फैमिली एंड एट लास्ट Juliet also comes to know that Romeo, whom she loved so much, that he also belongs to another family that was called the enemy background. That same night while Romeo's friends were trying to find him, उसी रात जब रोमियो के फ्रेंड्स उसे ढूंढने के लिए निकले in search of him, Romeo was standing below Juliet's lighted window. तो रोमियो उन्हें कहाँ पर खड़ा मिला? जूलियट के रूम के बाहर, that was the lighted window, and he was standing there because he wants to share his love to Juliet. And when he already comes to know that she's belong to his background, enemy background family, but he said that love always wins. Someone came to the window. It's Juliet. अब उसके फ्रेंड्स बोल रहे कि कोई विंडो पर शायद आ रहा है. रोमियो वेट कर रहा था ऑलरेडी जूलियट का उसकी लाइटेड विंडो के पास. इट्स जूलियट इज सेट. तो रोमियो सेट, ओ इट्स जूलियट, इट्स माई लव. वो मेरा लव है. शी इज स्पीकिंग. आई थिंक वो बोल रही है, बट शी इज़ नॉट स्पीकिंग टू मी. पर शायद वो मुझसे नहीं बोल रही. शी इज़ लुकिंग अप एट द स्टार्स. आई थिंक शी इज़ लुकिंग अप एट द स्टार्स. वो तारों से बातें कर रही है. ओ लाइक in this story, in this play, he compares her with the stars. वो क्या कहता है? If her eyes were stars in heaven, अगर उसकी जो आँखें हैं ना वो स्वर्ग में एक स्टार्स की तरह काम करे, they would be so bright. वो इतनी ज़्यादा चमकती हैं that birds would think कि birds पता क्या सोचेंगे कि अरे रात को भी दिन निकल आया, and they start chirping that it was day and start to sing. So like this, because of this language, this type of words, like he describes that he loves his beloved too much, and for this instance he compares his beloved with the stars, and her eyes with the stars. And he says that when she looks at the sky, and her eyes also behaves like a very much in a bright manner, becomes like a stars. So all the birds think that it was a day, and they started chirping. तो एक तरीके से whom like he loved her too much कि उसने कंपैरिजन कर दिया अपने बिलविड की आइज को विद द स्टार्स. जूलियट लर्नड आउट ऑफ हर विंडो. अब जूलियट क्या करती है? विंडो से बाहर देखती है. एंड रेस्टेड हर फेस ऑन हर हैंड. और अपने हैंड को अपने फेस के पास ऐसे रेस्ट करके रख लेती है. लाइक शी ऑल्सो बी लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग टू एनीथिंग. वो कुछ सोच रही है. आई थिंक शी इज़ थिंकिंग अबाउट रोमियो. शी वॉज थिंकिंग ऑफ रोमियो. या शी इज़ थिंकिंग ऑफ रोमियो ऑफ कोर्स. शी डिड नॉट नो दैट ही वॉज देयर लिसनिंग. आई डोंट थिंक सो कि उसको ये नहीं पता था कि रोमियो बाहर ही खड़ा है और वो उसके बारे में सोच रहा है. एंड शी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट रोमियो, एंड रोमियो ऑल्सो स्टैंडिंग देयर एंड थिंकिंग अबाउट जूलियट. ओ रोमियो रोमियो, वाई आर यू रोमियो. रोमियो के बारे में कह रही है. रोमियो रोमियो, वाई आर यू रोमियो. आई थिंक हेयर इज़ वेयर आर यू रोमियो. Change your name, or if you can't, I will no longer be a Capulet. Please try to change your name, because हमारे प्यार के बीच में अब दरार आ गया. That was called the background of our family, that you belong to another and I belong to Capulet. So all this Montague and the Capulet also be called the enemy background. So please try to change yourself. If you are not able to change yourself, then I will be change myself. So this play also describes about the small viewpoints of the love, sacrifice, love, feelings, emotions. It's only your name that is my enemy. केवल ये तुम्हारा नाम है रोमियो. That was called enemy. Try to change your name. Otherwise, I will change my name. That I belong to a Capulet family. But what does a name matter? पर name matter क्यों करता है? If a rose had any other name, it would smell as sweet. क्या अगर रोज का नाम बदल दिया जाए तो क्या वो खुशबू देना छोड़ देगा? क्या वो स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं देगा? Call me love, said Romeo. Romeo कह रहा है कि call me love. Let that be my name.
एंड फ्रॉम नाउ आई विल नेवर बी कॉल्ड रोमियो. तो मुझे लव बोलो ना, कॉल मी लव, डोंट कॉल मी रोमियो, चेंज माई नेम. आई हेट माई नेम बिकॉज इट इज़ एन एनिमी टू यू. मैं अपने नाम से हेट करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ये नाम पसंद नहीं है. नॉट लाइक दिस दैट आई एम नॉट लाइकिंग माई नेम. आई हेट माई नेम बिकॉज दिस नेम कॉल्स एनिमी फॉर यू. जूलियट वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट इन सरप्राइज. जूलियट हैरानी में एक क्षण के लिए चुप हो जाती है. देन हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ पर कैसे आए? शी सेड. जूलियट ने कहा द वॉल्स आर हाई. अरे दीवारें तो इतनी बड़ी हुई हैं. हाउ यू कैन जंप लाइक, इतनी एबिलिटी थी तुम्हारे अंदर. स्टोन वॉल्स कांट केप लव आउट. अगेन द नेक्स्ट लाइन ही सेड कि जो स्टोन वॉल्स है ना, जो दीवारें हैं पत्थरों से बनी हुई है, वो हमारे प्यार को नहीं रोक सकती. तो हमारे प्यार के बीच में कोई भी दीवार नहीं आ सकती. दैट वॉज कॉल्ड, जो हमारा एनिमी बैकग्राउंड है वो तो अलग ही बात है. इफ़ एनी ऑफ माई फैमिली सीज यू हेयर दे विल किल यू. जूलियट सेज अगर मेरे परिवार में से किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया, दे विल किल यू, वो तुम्हें मार देंगे. शी वॉन्स हिम. इफ़ देयर हेटर्ड एंडेड माई लाइफ सैड रोमियो. रोमियो कह रहा है क्या ये नफरत मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी? दैट वुड बी बेटर देन फॉर मी. तो मेरे लिए ठीक ही है टू गो ऑन लिविंग विदाउट योर लव. बिना तुम्हारे प्यार के जीने से तो अच्छा ही है कि दे विल किल मी, मुझे मार ही दे तुम्हारे प्यार के लिए. मतलब प्यार में जीने से अच्छा है कि प्यार से मैं मर ही जाऊँ, प्यार के लिए मैं मर जाऊँ. दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड द फेमस कोटेशन बेस्ड ऑन द लव. ही रांझा, रोमियो जूलियट, ऑल द स्टोरी यू हैव टू लिसन अबाउट द कि ये प्यार के लिए इन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया. एंड दे कॉल्ड द ग्रेट कॉल्ड लव, लाइक लव आइडल्स. डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आई नो दैट यू से येस. हाँ मुझे पता है तुम येस बोलोगे. बट इवन ऑफ यू स्वेयर, पर तुम कसम उठाओ, इट यू मे स्टिल बी अनट्रू, कि तुम कभी भी मेरे लिए झूठे नहीं बनोगे. तुम कभी भी मेरे अगेंस्ट या मेरे प्यार के लिए अनट्रू नहीं बनोगे. तुम हमेशा ईमानदार होगे. यू विल ऑलवेज रिमेन लाइक ऑनेस्ट टू मी फॉर माई लव. Lady, I swear by the moon that touches with silver the tops of those sweet fruit trees. Lady, Romeo said to Juliet, कि मैं कसम खाता हूँ बाय द मून दैट टचेस विद सिल्वर द टॉप्स ऑफ दोज फ्रूट ट्रीज, कि मैं तुम्हारे लिए इतना ईमानदार रहूँगा जितना कि मैंने अपने आप को, मतलब तुम्हें एक तरीके से मून के साथ कंपेयर कर दिया, स्टार्स के साथ कंपेयर कर दिया. ओ डोंट स्वेयर बाय द मून. अरे मतलब चंद्रमा की कसम खाकर मत कहो. इट चेंजेस एवरी मंथ. मून तो हर मंथ चेंज होता है. ही सेड कि मैं मून की तरह तुम्हारी कसम खाता हूँ. कंपेयर हिमसेल्फ विद द मून. वो कह रहा है कि तुम मुझे मून समझ लो. और आई स्वेयर कि वो तो कह रही है अरे मून तो हर मंथ चेंज होता है. योर लव माइट बी सो चेंजेबल. क्या तुम्हारा प्यार भी चेंजेबल है क्या? वट शेल आई स्वेयर बाय, तो मैं किसकी कसम उठाऊं? डोंट स्वेयर एट ऑल, किसी की कसम मत उठाओ. एट दैट मोमेंट द नर्स कॉल्ड. इसी क्षण नर्स बुलाती है जूलियट को. आई हियर इन वॉइस सेड जूलियट स्वीट लव गुड बाय. जूलियट सेड दैट नर्स इज कॉलिंग मी सो आई हैव टू गुड बाय. एंड शी सेड टू हिज लव स्वीट लव गुड बाय. शी वेंट इन साइड बट सून शी केम बैक. वो अंदर जाती है पर फिर वापस आ जाती है. डियर रोमियो शी सेड, कहती है डियर रोमियो, इफ़ यू ट्रूली विश टू मैरी मी, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, सेंड मी ए मैसेज टुमारो, कल मुझे एक मैसेज भेजना. आई विल सेट समवन हु विल ब्रिंग मी योर मैसेज, और मैं किसी को भेजूंगी जो तुम्हारा मैसेज मुझ तक लाए. टेल मी वेयर, बताना कहाँ पर, एंड एट व्हाट टाइम, और क्या टाइम रहेगा. यू विल मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगे, ये सब तुमने मुझे बताना. एंड आई विल ले ऑल दैट आई हैव एट. So think, this is the video how Juliet is standing in her balcony, and the position of the Romeo is standing, and he shakes hand with him. Like, see, this is the Romeo, this is Juliet, and how they are standing. Like they're describing the conversation between them. There are a lot of conversation they can discuss about where she will send her messenger, and what time of marriage he will fix. So see, this is the love journey of Romeo and Juliet. How Romeo is standing and Juliet is standing in her balcony, and they're shaking hand, and they are trying to converse with each other. They like making a secret planning about the marriage. So see, the setting plot, and also be about the secret meeting of the lovers. So don't disturb them. I have at your feet and follow you, my lord, through all the world. Now see, Juliet said,
at the time of marriages, we also be take a swear, like कि हम अपने हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करेंगे, उनको हमेशा फॉलो करेंगे, उनके कदमों पर चलेंगे, जो वो कहेंगे, लाइक एवरीथिंग. No, Juliet said कि I will follow you, my lord, every time, in every step, in the whole world, throughout all the life. The nurse called again. Nurse दोबारा बुलाती है. Juliet went in. Juliet जाती है and then came out again. Juliet फिर आ जाती है. Like she doesn't like tolerate कि वो Romeo से दूर रहे. Romeo, my sweet, at what time tomorrow shall I send to you? तो रोमियो, माई स्वीट, तो मुझे टाइम तो बताओ कल का. रोमियो सेड एट 9 o'clock. माई मैसेंजर विल बी देयर. जूलियट सेड ठीक है, मेरा मैसेंजर वहाँ पर आ जाएगा. इट्स ऑलमोस्ट मॉर्निंग, सुबह का ही टाइम है. आई मस्ट लेट यू गो. गुड नाइट, तुम चले जाओ अब. गुड नाइट, गुड नाइट. पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो. जो पार्टिंग है ना, जो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दैट वॉज कॉल्ड द डिपार्चर बिटवीन रोमियो एंड जूलियट. दैट वॉज ऑल्सो बी कॉल्ड स्वीट, क्योंकि हम कल मिलने वाले हैं. एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग वी विल मीट. सो शी सेड कि जो डिपार्चर है ना बिफोर द मैरिज, वन डे का, दैट वॉज कॉल्ड ए स्वीट सोरो. दुख तो है बट स्वीट है, नॉट कॉल्ड पेनफुल. दैट आई वॉन्ट स्टॉप सेइंग गुड नाइट एंड अंटिल टुमारो. बट मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही आपको गुड नाइट विश करने से. एंड टुमारो आ गया तो तुम्हें पता ही है कि टुमारो क्या होगा. शी वेंट बैक इन टू हर रूम. वो अब अपने रूम में वापस चली जाती है. स्लीप रेस्ट ऑन योर आइज, सैड रोमियो कहते हैं कि आप अपनी आइज को थोड़ा आराम दो. पीस इन योर ब्रेस्ट, आई विश दैट आई वर स्लीप एंड पीस टू रेस्ट इन सो स्वीट ए प्लेस. शी सेड कि तुम अपने आप को शांति दो, अपनी ब्रेस्ट को पीस करो, मतलब रिलैक्स फील करो. आई विश, और मैं कामना करता हूँ दैट आई वर स्लीप एंड पीस टू रेस्ट इन सो स्वीट ए प्लेस, कि मैं भी उस प्लेस पर, मीन्स तुम्हारे ब्रेस्ट पर, जहाँ से तुम ब्रीथ कर रही हो वहाँ पर मैं भी सिर रख कर अपना सोच सकूँ. और दैट वॉज कॉल्ड ए वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. ही ऑल्सो बी डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स विद हर बिलवेड, विद हिज बिलवेड. रोमियो टर्न्ड अवे. रोमियो मुड़ जाता है एंड ही ट्राइज टू गो, सेइंग टू हिमसेल्फ, अपने आप को कहता है, आई मस्ट गो टू फ्रेयर लॉरेंस. मैं अब फ्रेयर लॉरेंस के पास जा रहा हूँ. नाउ हु वॉज फ्रेयर लॉरेंस? फ्रेयर लॉरेंस वॉज कॉल्ड द मैन, गॉड ऑफ मैन, मैन ऑफ गॉड. आपको मैंने कल करेक्टर्स, वाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट द करेक्टर्स इन द प्ले, ऑल्सो भी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आई हैव डिस्कस्ड टुमारो इन द लेक्चर. That was who was Friar Lawrence. Friar Lawrence, and the another is Friar John, called the man of God. Clear to you? फ्रेयर लॉरेंस वॉज ए मैन ऑफ गॉड. बोथ रोमियो एंड जूलियट न्यू हिम. और रोमियो और जूलियट दोनों ही उसे जानते हैं. कि जो फ्रेयर लॉरेंस है दैट वॉज कॉल्ड द मैन ऑफ गॉड. तो मैन ऑफ गॉड माने जाते हैं. नेक्स्ट इज दैट वॉज फ्रेयर जॉन. और रोमियो और जूलियट दोनों ही फ्रेयर लॉरेंस के बारे में जानते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज पिकिंग प्लांट्स आउटसाइड हिज सेल. अगली सुबह वो क्या कर रहा था? वो प्लांट्स को पिक कर रहा था आउटसाइड हिज सेल, अपने रूम के बाहर. ही न्यू ए ग्रेट डील अबाउट ऑल द यूजेस ऑफ प्लांट्स टू मेक सिक पीपल वेल. और उसने ये जाना कि ये जो प्लांट्स हैं ना, ये एक तरीके से जो सिक पीपल हैं, जो बीमार लोग हैं, उन्हें ठीक करते हैं. मतलब एक तरीके से उनको ठीक करते हैं. क्लियर है? इट्स क्लियर टू यू? The next morning, he was picking plants outside his cell. He knew a great deal about all the uses of plants to make sick people well or to send the tired or ill to sleep. और जो भी बीमार लोग हैं और टायर्ड थके हुए लोग हैं, उन्हें स्लीप, पीसफुल स्लीप प्रदान करते हैं. तो वो प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है. इट वॉज स्टिल वेरी अर्ली. और काफ़ी सुबह है. फ्रायर लॉरेंस वॉज सरप्राइज टू सी रोमियो. और फ्रायर लॉरेंस काफ़ी सरप्राइज हो जाता है सुबह सुबह रोमियो को देख के कि रोमियो मेरे पास भागता हुआ क्यों आ रहा है, क्या अर्जेंसी हो गई है. वाई आर यू अब सो अर्ली, तुम इतने सुबह कैसे उठ गए? सेड द फ्रायर ने कहा. इज़ इट बिकॉज यू कांट कुडंट स्लीप, ऐसा इसलिए कि तुम नहीं सोए? रोमियो सेड, थिंकिंग ऑफ रोजलिन. अब पता है वो क्या कहता है? फ्रायर लॉरेंस कहता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि तुम इसलिए नहीं सोए क्योंकि तुम ना रोजलिन के बारे में सोच रहे थे, रोजलिन के बारे में. बट उसे क्या पता फ्रायर लॉरेंस को कि रोजलिन से तो बहुत आगे अब वो जूलियट के चक्कर में पड़ गया. नाउ ही लव्स जूलियट, ही डजंट लव रोजलिन एनी मोर. रोजलिन? नो, ही सेड रोजलिन, ना ना, आई हैड फॉरगेटन हर नेम. अरे मैं तो उसका नाम भी भूल गया. एंड ऑल द अनहैप्पीनेस दैट वेंट विद इट, और जो भी दुख थे मैं तो वो सब भूल गया. आई मस्ट टेल यू प्लेनली, मैं तुम्हें साफ बताता हूँ. आई लव द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ लॉर्ड कैपुलेट. मैं लॉर्ड कैपुलेट की डॉटर जूलियट से प्यार करता हूँ.
एंड शी लव्स मी, और वो भी मुझे प्यार करती है. वी वॉन्ट यू टू मैरी अस टुडे. और मैन ऑफ गॉड मीन्स कॉल्ड प्रीस्ट. इट्स क्लियर टू यू. तो वो ये चाहती है, रोमियो प्लस जूलियट वांट कि जो लॉरेंस है कॉल्ड द मैन ऑफ गॉड, वो उनकी मैरिज करवाए. तो ये बात रोमियो किसको बोलते हैं? मैन ऑफ गॉड को बोलते हैं. ओह व्हाट ए चेंज, क्राइड फ्रेड लॉरेंस. फ्रेड लॉरेंस चिल्लाते हैं, ओह व्हाट ए चेंज, आई डोंट लाइक इट. मुझे ये पसंद नहीं है. इट्स टू सडन, इट्स बैड. ये बुरा है, ये बहुत अचानक हो रहा है. डोंट स्पीक हार्ड वर्ड्स टू मी. अरे मेरे साथ ऐसे बुरे वर्ड्स तो मत बोलो. जूलियट लव्स मी. जूलियट मुझे प्यार करती है. रोजलिन डिडंट. रोजलिन नहीं करती. आई बेग यू टू मैरी अस टुडे. मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, भीख मांगता हूँ, हमारी मैरिज तो करवा दो. रोजलिन न्यू दैट यू वर नॉट रियली इन लव. रोजलिन को पता है कि तुम प्यार में नहीं हो. सेड द वाइस फ्रेड. फ्रेड ने कहा, बट आई विल मैरी यू. दिस मैरिज मे टर्न द हेटर्ड बिटवीन यू टू फैमिलीज इन टू लव. पर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा. पर रोमियो की शादी जूलियट के साथ, जो मंटेग्यू और कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो आपस में क्या हैं? एनिमी हैं. ये चीज़ क्या होगी? ये टू फैमिलीज़ के प्यार को किस में बदल देगी? नफ़रत में बदल देगी. ये चीज़ कौन क्लियर कर रहे हैं? फ्रेड लॉरेंस क्लियर कर रहे हैं. रोमियो मिच मर्क्यूशियो एंड बेनिवोलियो. अब रोमियो किससे मिलते हैं? मर्क्यूशियो और बेनिवोलियो से. नाउ हु वाज मर्क्यूशियो एंड बेनिवोलियो? कॉल्ड रोमियोस फ्रेंड्स. ये दोनों कौन है? रोमियो के फ्रेंड्स हैं. कौन है ये दोनों कैरेक्टर? मर्क्यूशियो वॉज ए मेंबर ऑफ प्रिंस इस्किलस फैमिली. जो मर्क्यूशियो है वो प्रिंस इस्किलस फैमिली से बिलोंग करता है. एंड वन ऑफ रोमियोज फ्रेंड्स. और जो दूसरा है बेनवोलियो, वो किसका फ्रेंड है? वो रोमियो का फ्रेंड है. द नर्स केम टू वेयर दे वर टॉकिंग इन द स्ट्रीट. अब नर्स आती है जहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं. प्लेन्स वर क्विकली मेड फॉर द मैरिज. अब जो प्लान्स होता है, प्लान होते हैं किसके? मैरिज करवाने के, वो अब बना दिए जाते हैं. टेल जूलियट सेड रोमियो. रोमियो कहता है जूलियट को बता देना. टू फाइंड सम वे टू बी विद फ्रेड लॉरेंस दिस आफ्टरनून. कि कुछ भी करे तो एक तरीके से यही है कि कोई रास्ता निकाले कि अब फ्रायर लॉरेंस इस आफ्टरनून को ही मैरिज करवाएंगे. ही विल मैरी अस एट ए सेल. और वो अपने सेल में ही शादी करवाएंगे हमारी. एंड नर्स माई मैन बेल्थेजर विल मीट यू इन एन आवर्स टाइम बिहाइंड द चर्च. अब वो नर्स को क्या बोलते हैं? नर्स कॉल्ड द मैसेंजर फॉर द जूलियट. कि जो मेरे मैन है बेल्थेजर, वो मिलना चाहते हैं इन एन आवर्स टाइम बिहाइंड द चर्च, चर्च के पीछे. ही विल ब्रिंग यू ए रॉप लेटर. वो तुम्हें एक रस्सी देंगे और एक सीढ़ी देंगे फॉर मी, मेरे लिए, टू क्लाइंब अप टू नाइट टू जूलियट रूम. कि मैं रात को उस पे से चढ़ के जूलियट के कमरे में चला जाऊँ. गुड बाय, गिव माई डियरेस्ट लव टू यूर लेडी. तो वो कह रहे हैं कि गुड बाय, अब तुम मेरा जो डियरेस्ट लव है वो तुम अपनी लेडी को दे देना. मीन्स ट्राई टू गिव माई लव फ्रॉम माई साइड टू जूलियट. So is it clear to you? So this is the act second. In next video, means tomorrow I will upload the video, and in that video you come to know about the act third of this story, Romeo and Juliet. I hope you like it. So please like, share and subscribe, and also comment on my video and try to like, share and subscribe. So thank you so much.